Hello everyone, this is Deepa. Students, we are going to start our chapter number 1 of economics, that is the story of village Palampur. In my previous video, I have discussed about factors of production, overview of the chapter, and we have discussed about land, labor, capital, and further classification of physical capital into fixed capital and working capital. For the convenience, we are just saying capital only to the physical capital. And we have discussed a lot about the nearby areas of the village Palampur. Now we are going to start farming in Palampur. So as we all know that main activity of the Palampur villagers are the agriculture. Farming is the main production activity in Palampur, and 75% of the people who were working are dependent on the farming for their livelihood. So we can say they could be farmer or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farms. One thing is here to remember, students, that there is a one problem that land for the cultivation is practically fixed, that cannot be raised. So here we are going to discuss about land is fixed, क्या भूमि स्थिर है? So yes, इन 1960s में इन लोगों ने अपना कुछ एरिया जो कि बैरन एरियाज था उसको उन्होंने कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट भी किया. Since 1960, in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wasteland in the villages had been converted into cultivable land. So हम ये कह सकते हैं कि 1960 में जो उससे पहले जो भी एरिया था उसमें तो थोड़ा कृषि क्षेत्र में उनका विस्तार किया भी गया था, लेकिन उसके बाद कोई भी जो भूमि एक बार बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था, उसके बाद कोई नई भूमि जो थी वो कल्टिवेबल नहीं बन पाई. और जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का कोई और तरीका नहीं है. या तो भाई लैंड इंक्रीज़ कर दी जाए या फिर कुछ अदर फैक्टर्स ऐसे यूज़ किए जाएं जिसके थ्रू हमारे क्या है प्रोडक्शन इम्प्रूव कर जाए, इंक्रीज़ कर जाए. सो हियर विल डिस्कस अबाउट दैट कि हाउ वी कैन इम्प्रूव प्रोडक्शन on the same piece of land. Is there a way one can grow from the same land? So yes, there is a way. This we can do through the multiple cropping. So what is the meaning of multiple cropping? It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as their third crop in the past 50 to 20 years. So meaning of multiple cropping is that to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. मतलब कि एक ही फसल, जब हम बहुत सारी फसल प्रणाली, इसको हम कह सकते हैं कि बहुविधि फसल प्रणाली, जब एक ईयर में ही हम किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल ग्रो करते हैं तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है. और पालमपुर एरिया में 15 to 20 ईयर से लोग अपनी फर्स्ट और सेकेंड क्रॉप को ग्रो करने के बाद थर्ड क्रॉप के रूप में पोटैटो को ग्रो कर रहे हैं. एंड सेकेंड अनदर मेथड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड. बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड वी कैन improve production. One of the way of increasing production from the same land is multiple cropping, and after that second one is modern farming method for the higher yield. What is yield? Yield is a measure as crop produced on a given piece of land during single season. एक सीज़न में हम जितना भी ग्रो करते हैं वो एक सीज़न में एक लैंड पे जितना भी ग्रो हुआ है उसको हम यील्ड बोलते हैं. यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको उसकी उपज बोलते हैं. एंड थर्ड मेथड क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ये जो इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ही ये था कि हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स वी हैव स्टार्टेड टू यूज़ एंड fertilizers and chemical fertilizers and pesticide and insecticide.
traditional some when we are using traditional seeds needed less irrigation and farmers used cow dung and other natural manure as fertilizer. Earlier क्या होता था स्टूडेंट्स कि लोगों के पास काउ डंग अवेलेबल होता था, नेचुरल मैन्योर एज अ फर्टिलाइज़र वो यूज़ करते थे, तो दे डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट to buy fertilizers and manures. Nowadays, when after the green revolution, the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivate of wheat and rice using high yielding variety, that is HYV of seeds. It needs what? मतलब high yields were possible only from combination of high yielding variety of seeds. Second, irrigation. Third is chemical fertilizers or pesticide, etc. So we have to use these many things. Here we can say what the things are used in the modern farming method. You can see in the diagram. HYV seeds, chemical fertilizers, etc. So now I'm just going to discuss about the what are the problems when we have started to use HYV seeds. HY seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce for larger quantity of food grain than was possible earlier. जो पहले नहीं possible था उसके बाद जो है HYV seeds हमको बहुत great amount of grain available करा रहे हैं, मगर इसका क्या हमारा ड्रॉबैक है कि इसको किस चीज़ की नीड है? प्लेंटी ऑफ वाटर और केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी बहुत नीड है और पेस्टिसाइड्स की भी नीड है फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स. So we can say that these are the methods by using that we can improve our production on the same pace of land. Now move towards, will the land sustain? क्या ये जितना भी चीज़ हम बोल रहे हैं कि हम यूटिलाइज करेंगे तो क्या लैंड इसको सस्टेन कर पाएगी? लैंड क्या इसके धारण करने योग्य है या नहीं? So students, as we all know that land being a natural resource, it's necessary to be very careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming method have overused the natural resources here. अभी जो हमारी जो लैंड है ये एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है, इसको हमें यूटिलाइज करना बहुत अच्छे से. हियर इन दिस डायग्राम वी कैन सी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है. हियर वी कैन सी द ये जो स्मॉल एरिया प्लॉट ऑफ लैंड है, ये वाला जो एरिया है ये ऑब्वियसली स्मॉल फार्मर्स का है, और जो इस राइट हैंड साइड में जो हमारे डायग्राम दिया हुआ है इसमें जो है ये लार्ज फार्म्स एरियाज़ हैं, ये हमारे बिग फार्म मतलब लार्ज फार्मर्स जो हैं, लार्ज कल्टीवेटर हैं, उनके लिए होगा, है ना. जो जो छोटे किसान हैं, जो उनका जो पीस ऑफ लैंड है वो बहुत छोटा है, और जो बड़े किसान हैं वो कैसे हैं, उनके पीस ऑफ लैंड बहुत बड़े बड़े हैं. सो यस, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम नहीं है. As a land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. Scientific report indicate that modern method have overused the natural resources base. कि ये बताती हैं कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि खेती में जो आधुनिक हम जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे रिसोर्स जो है बहुत ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं. और जो हरित क्रांति जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद क्या हुआ कि जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी थी वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है. और जैसे कि हम बोल सकते हैं इरिगेशन के जो बहुत ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ को नीडेड है, बहुत ज़्यादा वाटर की प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ नीडेड, तो उसकी वजह से क्या होता जा रहा है, हमारा जो लेवल ऑफ वाटर टेबल है वो भी बिलो होती जा रही है. कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर द ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ रिड्यूस वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of environment to ensure future development of एग्रीकल्चर. सो ऑब्वियसली एक बार ये अगर ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी चली गई, तो इसे बिल्टअप होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो रीस्टोर नहीं हो पाएगी जल्दी. सो दिस वी हैव टू कीप ऑन टॉप प्रायोरिटी
कि हम लोग जो है इसका ओवर यूटिलाइजेशन ना करें और इसकी फर्टिलिटी को जाने से रोकें. Students, we have seen two sources in which we have seen कि डाउन टू अर्थ फ्रॉम न्यू दिल्ली, ये सोर्स है. अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स जो हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, वो क्या करते हैं, पानी वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद इमिडिएटली प्लांट पे अवेलेबल हो जाते हैं. उसकी वजह से वो सॉइल में काफ़ी समय तक सॉइल के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि वो उस चीज़ को मतलब अपने अंदर स्टोर करके रख सके. धीरे धीरे वो क्या करती है, वो निकल जाती है और फिर नदियों और तालाबों को पल्यूट कर देती है. और वो जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे, और जो हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल के अंदर, ये भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसकी वजह से जो कुछ समय के बाद जो मिट्टी है ना, उसकी जो पहले जैसी फर्टिलिटी है वो नहीं रहती है, वो ख़त्म हो जाती है इन द कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस. एंड सेकेंड अनदर सोर्स ऑफ सोर्सेज द ट्रिब्यून फ्रॉम चंडीगढ़. इसमें कहा है कि जो कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा किया गया. उसकी वजह से जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, उसकी वजह से जो सॉइल है वो बहुत डिग्रेड हो गई है. जो सॉइल की हेल्थ है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है. उसकी वजह से अब उसको सेम लेवल का प्रोडक्शन करने के लिए और भी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, बहुत केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है. मीन्स हमें कहना चाहिए कि जो हमें कॉस्ट जो हमारी लग रही थी प्रोडक्शन करने के लिए, वो और इंक्रीज़ होती चली जा रही है. Here we are discussing about the land distributed between the farmers of Palampur. As we have seen in the previous diagram, we can see कि ये जो small farmers हैं उनके हमारे small plot of land हैं, और जो हमारे ये right hand side में जो big farm area है, जो हमारा big land portions है, इसमें जो cultivation हो रहा है, ये हमारे जो large farmers हैं, जो बहुत बड़े बड़े many lenders हैं, उनके farm areas हैं. हम ये कह सकते हैं कि जो 450 जो फैमिलीज़ हैं हमारी पालमपुर में, उनमें से लगभग जो है 1/3 फैमिली जो है 150 के पास जो है, जो लोग बहुत दलित भी हैं उनके पास लैंड ही नहीं है. और जो 240 फैमिलीज़ बच रही हैं उनके पास एटलीस्ट है तो 2 हेक्टर से भी लो है. और फिर ऐसे में जो उनकी जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है. इससे उनका सिर्फ खुद का सर्वाइवल हो पाता है, वो मार्केट में सेल नहीं कर पाते, उनके पास कोई सरप्लस अमाउंट ऑफ क्रॉप नहीं होती है. 1960 में हमने ये देखा कि जो एक कल्टीवेटर है गोविंद नाम का, उसके पास 225 हेक्टर लैंड थी, जो कि अच्छे से वो यूटिलाइज़ कर रहे थे. उनके 3 जो सन्स थे वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे थे. आफ्टर जब वो उनमें पार्टीशन हो गया उन तीनों भाइयों में, तो 0.75 हेक्टर लैंड उनके पास पड़ी. लेकिन अब तो लैंड बहुत कम हो गई, मगर क्यों? क्योंकि ये 1960 के बाद की बात है, तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया हमारा, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो गई, और जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को इन्होंने यूटिलाइज़ करके इनका ईजीली अपना लिवलीहुड चल जाता है, इनका आराम से सर्वाइवल हो जाता है. और उन्हें फिर भी कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, तो उन्हें कुछ टाइम के लिए कोई नया वर्क भी ढूंढना पड़ जाता है अपना, फॉर एडिशनल वर्क वी कैन से. मतलब वो उतने कम पोर्शन ऑफ लैंड में वो उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कितनी भी फैसिलिटीज़ हमें मिल गई हैं, लेकिन जब लैंड बहुत स्मॉल पीस ऑफ लैंड होगी तो उस पर ऑब्वियसली क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होगा. फर्दर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे जो मीडियम फार्मर्स हैं और जो लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास कितना डिफरेंस है. जो हमारे जो लार्ज फार्मर एरियाज, लार्ज फार्म्स हैं जिन लोगों के पास, उनके पास एटलीस्ट 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है. और जो लोग छोटे लैंड होल्डिंग्स रखते हैं, तो उनके पास एटलीस्ट 2 हेक्टेयर, या फिर हम कह सकते हैं 2 हेक्टेयर से भी कम ही लैंड है. इन दिस डायग्राम वी हैव सीन दिस.
Here is a diagram, students, where you can see that what are the different activities are going on. Work on the field, wheat crop plowing by bullocks, sowing, spraying of insecticide, cultivation by traditional methods, cultivation of crop, in which you can see कि new methods क्या थे हमारे, कैसे लोग पहले कल्टीवेशन करते थे और नाउ डेज किस तरीके से मॉडर्न टेक्निक्स के को यूटिलाइज करके हमारी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है. Land is very important for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. Yes, जो ये कल्टिवेशन करने के लिए हमको एक हमें सफिशिएंट लैंड की भी नीड होती है. तो इस टाइम पे वो नहीं हमारे यहाँ हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेबल एरिया एंड फार्मर्स. ऑन द लेफ्ट साइड कल्टिवेटेड एरिया इज देयर एंड नंबर ऑफ farmers is given on the right side. Here we can see the small farmers which are having 36% and less than 2 hectare land. And here we can see कि जो लेफ्ट 64% है उनके पास नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं, वो 20% है. और इसमें हम मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को इंक्लूड कर रहे हैं. यानी मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास एटलीस्ट मोर देन 2 हेक्टर्स, वी कैन से कि एटलीस्ट 10 हेक्टर्स तक लैंड है. Now we'll discuss about who will provide the labor. ये जो श्रम है, ये लेबर है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा. So after land, labor is next necessary factor for production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers along with their families cultivate their own field. Thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on the fields. Farm laborers come either from landless families or families cultivating small plot of land. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crop grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmers for whom they work. Wages can be in cash or in kind, example crop. Sometimes labor get meals also. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि लैंड के बाद हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो है हमारा लेबर, जो कि खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. ये तो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लेबर की नीड होती है उसमें. इजीली कोई 1 और 2 पीपल्स बहुत बड़े लार्ज फार्म एरिया में वर्क करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को ग्रो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते. और जो उनकी फैमिलीज़ होती हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनकी जो फैमिलीज़ होती है वो इतना ही ग्रो करते हैं कि उनकी फैमिली का सर्वाइवल हो जाए और वो अपनी लिवलीहुड के लिए खाते हैं. वो एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट ऑफ क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते हैं. बट जो हमारे मीडियम लेवल के और जो लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास जो हमने देखा कि जो उनके पास लैंड एरिया है वो ज़्यादा है, तो उसके लिए उनको दूसरे जो लेबरर्स हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, जिनको वो या रेंट पर बुलाते हैं, या तो फिर उनको क्या करते हैं, या तो फिर उनके लिए कुछ अमाउंट सैलरी कुछ प्रोवाइड, मतलब उनको कुछ मनी देते हैं, या तो फिर उनको मील्स देते हैं, या तो कैश के अलावा कुछ क्रॉप दे देते हैं, और कई बार मील्स प्रोवाइड कर देते हैं. तो इसी तरीके से उनका काम चल जाता है कि उनकी सर्वाइवल ही चल पाता है केवल इससे. हियर वी कैन सी अ डायग्राम द कन्वर्सेशन बिटवीन दाला एंड रामकली. ये जो दाला और रामकली के बीच में ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये बोल रहे हैं कि दाला एंड रामकली इज डिस्कसिंग कि आजकल जो वर्क है वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज. ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड देन टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज. आजकल बहुत कम जो हमारे बड़े लार्ज फार्मर्स रह गए हैं और वही लोग सिर्फ हमको हायर करते हैं. जिसमें जो ये रामकली है वो उनको बता रही है कि जो एक घनश्याम नाम के एक बहुत बड़े जो मनी लैंडर हम कह सकते हैं, या फिर लार्ज फार्म होल्डर हैं, लार्ज फार्मर हैं, उनके पास उन्होंने हार्वेस्टर ख़रीदा है, ताकि वो लोगों को मतलब जो भी हार्वेस्टिंग करनी है उससे को लोगों को काम भी नहीं मिल पाएगा,
जब जब जो भी वर्क जो लोग खुद कर रहे होते हैं, जब उसे मशीन यूटिलाइज करने लगेंगे हम लोग, तो वो काम मशीन से हो जाएगा, तो उनको नहीं मिलेगा। तो वो बता रही है कि लास्ट 5 ईयर्स में मैंने मतलब लास्ट ईयर मैंने 5 मंथ्स तक उनके यहाँ पर काम किया था। तो फिर वो बता रहे हैं कि ट्रैक्टर जो है आजकल आ गए हैं, और जो हार्वेस्टिंग मशीन आ गई हैं, और जो थ्रेशर्स वगैरह है, उसकी वजह से क्या कर रहे हैं लोग ना, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल देते हैं। तो कुछ लोगों को, किसानों को वीडिसाइड और पेस्टिसाइड्स करते, तो उनको अब वो काम भी नहीं मिल सकता, जिससे वो कि लोग फार्म एरिया में जाके वीड्स रिमूवर का भी काम कर सकें। एंड फिर वो बोल रही है कि मुझे रायगंज में जा कर के कुछ नेक्स्ट वर्क ढूंढना पड़ेगा, यानी कि ब्रिक मेकिंग यूनिट ऑफ रायगंज में जाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है हमारी भी, और जिसमें कि डाला बता रहा है कि आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2,000 एंड आई हैड टू टेकन ₹1,000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड। बता रहा है कि मुझे ₹2,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट जो समर्स हैं उसमें 1,000 लिए थे। तो सोचिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हाई लगाया हुआ है इनके ऊपर। हमने भी देखा भी था कि इन लोगों के ऊपर जो उनका डेली वेजेस है, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ₹60 डिसाइड कर रखा है। बट जब लोग अपना रीपे नहीं कर पाते हैं, जो भी पैसा बोरो करते हैं वो रीपे नहीं कर पाते, तो वो उन लोगों से इस तरीके के प्रोमिस करवा लेते हैं कि यू हैव टू डू वर्क ऑन 35 और 40 रुपीज़। मीन्स बहुत कम पैसों में उनको काम करना पड़ता है। देयर इज़ वेरी हाई कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। Now we'll discuss about the capital needed in farming. Yes, we all know that obviously in the farming capital is required. Most small farmer have to borrow money to arrange for the capital. जो छोटे किसान होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, बोरो ही करना पड़ता है। They borrow from large farmers or the village money lender or the trader who supply various inputs for them. For cultivation, the rate of interest on such loans is very high. They are put to great distress to repay the loan. And in contrast to small farmers, the medium and large farmers have their own saving from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, ऑब्वियसली उनके पास इतना ग्रो होता है कि उनकी उनकी वो खुद का सर्वाइव करने के बाद उनकी खुद की नीड जितनी भी है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के बराबर वो रख लेते हैं, और उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर होता है या सरप्लस अमाउंट ऑफ क्रॉप होता है, उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। उससे उनको कुछ मनी इन हैंड मिल जाता है, कैश इन हैंड मनी मिल जाता है। उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल की को अरेंज करने में ईजिली अरेंज कर लेते हैं। बट जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो उनको अरेंज नहीं कर पाते हैं, फॉर बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर और द ट्रेडर्स और फ्रॉम द large farmers. So as we all know, the modern farming method require a great deal of capital, so that farmer now needs more money than before. पहले के कंपैरिजन में आज के टाइम पर मनी की बहुत ज़्यादा नीड है हमारे फार्मिंग, because we started to use modern farming methods. Sale of surplus farm product. It means what? Sale of surplus farm product means जो हमारी जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा जब आता है अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री, वो कैसे होती है। सो हियर वी कैन सी कि एटलीस्ट जो हमारे 3 फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं हमारे, उनको यूटिलाइजेशन हमने देखा। तो जो हमारी large farmer and medium farmers of Palampur retain a part of their produce for their own use and sell the balance in the market. जो भी बैलेंस होता है वो मार्केट में सेल कर देते हैं। ट्रेडर्स इन द मार्केट बाय द वीट टू सेल इट टू शॉपकीपर इन द सिटीज़ एंड टाउन्स। जो भी चीज़ें जो उनका एक्स्ट्रा होती है वो वीट का या फिर जो वो शॉपकीपर्स को सिटीज़ और टाउन्स में सेल कर देते हैं। दीज फार्मर्स अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू दिस सेल।
They use this money to purchase input for the next farming season, purchase a capital equipment, or even give loans to the small farmers who need them. Some farmers also use this money to start activities in the non-farm sectors. Yes, we can see कि जिन लोगों के पास मनी कैश इन हैंड आ जाता है, सेल करने के बाद जो अमाउंट आ जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना कुछ ऐसा भी वर्क स्टार्ट कर लेते हैं जो कि नॉन फार्म सेक्टर का वर्क होता है, जो कि फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, उसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं. तो कई बारी लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक कल्टीवेटर हैं तेजपाल सिंह, उन्होंने अपनी सेविंग्स से क्या किया है, एक न्यू ट्रैक्टर खरीद लिया है. और वो क्या इम्प्रूव कर रहा है, उनकी फिक्स कैपिटल को इम्प्रूव कर रहा है ना. तो जो फिक्स कैपिटल को जब हम यूटिलाइज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन में और इंक्रीज़ हो जाती है. जैसे फिक्स कैपिटल और हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा है कि जो हमारी जो फिक्स कैपिटल होती है वो बहुत सारे मैनी ईयर्स वर्क आती है, बहुत सारे सालों तक हमें यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं. और जो ये हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, ये इसमें क्या होता है, ये जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान ही ख़त्म हो जाती है. जैसे कि रॉ मटेरियल है हमारा और हमारा मनी इन हैंड है. सो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे तेजपाल सिंह जो कल्टीवेटर हैं, ये 350 क्विंटल, तो इनका सरप्लस अमाउंट बच गया है. नाउ विल डिस्कस अबाउट कि what are the non-farming activities done by the peoples in Palampur. Non-farming activities in Palampur. So first we'll discuss about small scale manufacturing. एटलीस्ट जो पालमपुर के 50% लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वर्क में इन्वॉल्व हैं और अपने टाउन्स और सिटीज़ में जाकर के बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कर रहे हैं, है ना. और बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं. और जो छोटे हैं जो उसे मतलब ये बहुत हाई लेवल पर नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी मेथड्स को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन टाउन्स एंड सिटीज़ in Pala involve very simple production method and are done on a small scale. बहुत small scale पे करते हैं. They carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Rarely are laborer hired. इसमें ये जो काम करते हैं ये श्रमिक कभी कभार ही किसी को किराए पर लिया जाता है, अदरवाइज़ ये अपने घर में ही काम विनिर्माण का काम करवाते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर इसे घर में या फिर खेतों में कर लेते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है. Here is an example of मिश्री लाल whose story is given in your NCERT book. कि वो क्या मिश्री लाल जी क्या करते हैं, एक मशीन परचेज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है, अपने खेत में उसको लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, उससे शुगर केन क्रशिंग करते हैं. एंड वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. पहले ये बुलक्स की मदद से की जाती थी. नाउ अ डेज दिस वॉज डन बाय मशीन्स. तो मिश्रीलाल also buys sugarcane from other farmers and process it into jaggery. The jaggery is then sold to traders at Shahpur. In the process of मिश्रीलाल makes a small profit. इसमें क्या होता है, इसको प्रॉफिट हो जाता है कि जैगरी यानी कि गुड़ बनाने का काम करते हैं ये, और फिर उसको जब गुड़ बन जाता है शुगर केन से, उसको फिर शाहपुर में ट्रेडर्स को बेच देते हैं. एंड now we'll discuss about dairy farming. जो पालमपुर है, पालमपुर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेयरी में भी इन्वॉल्व हैं. डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. पीपल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. द मिल्क इज सोल्ड in Raiganj and nearby large village. And two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away town and cities. मीन्स कई लोग हैं जो कि पालमपुर में डेयरी का काम कर रहे हैं और वो अपनी भैंसों को बहुत कुछ खिलाते हैं, ज्वार बाजरा वगैरह उगा के, जो चरी वगैरह होता है फॉडर खिलाते हैं, और उसको जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको शाहपुर के आसपास के शाहपुर शहर में और रायगंज में एक सेंटर पे दे देते हैं, जो कि कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स है रायगंज में.
वहाँ तक बेच देते हैं और दूर दराज के शहरों में भी भेजा जाता है वहाँ से उसका जो मिल्क है। एंड थर्ड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ शॉपकीपिंग। कई लोग जो हैं शॉपकीपिंग में भी इन्वॉल्व हैं, शॉपकीपर्स भी हैं पालमपुर में, जो कि छोटे छोटे जनरल स्टोर्स और वीट के, राइस के और टी और ऑयल एंड बिस्किट एंड सोप, टूथपेस्ट एंड बैटरी और कैंडल्स, कॉपीज़, पेन, पेंसिल्स एंड कुछ क्लोथ वगैरह भी बेचते हैं। एंड और कुछ जो चीज़ें होती हैं जो सिंपली यूज़ में आती हैं हमारे, जो कि हम कंज्यूम करते हैं, ईटेबल्स वी कैन से, दे सेल ईटेबल्स ऑल्सो। इसमें हमने देखा कि कुछ लोगों ने शॉप के अकॉर्डिंग, एक स्टोरी इज़ गिवन इन द एनसीईआरटी दैट करीम की स्टोरी दी हुई है, करीम स्टोरी। वो अपने गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोल लेता है, जिससे कि क्या होता है, जो आसपास के एरिया में जो लोगों की कंप्यूटर की डिग्री लिए हुए हैं उनको उसमें अपॉइंट कर देता है, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री वाले लोगों को, और कुछ स्टूडेंट्स जो कि एटलीस्ट हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ बुला करके ट्रेनिंग दिलवाता है, और एक क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, अपने घर में ही वो स्टार्ट कर देता है, कुछ कंप्यूटर्स न्यू खरीद के लाता है। तो कुछ ऐसे भी वर्क हैं जो कि नॉट इंक्लूडेड इन द फार्मिंग। एंड लास्ट वन एन इम्पॉर्टेंट वन, ट्रांसपोर्ट, इट इज़ ऑल्सो अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी एंड वी कैन से अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर ऑल्सो। Regarding this, one story of Kishore is given in your NCERT। एंड जो पालमपुर एरिया है, हम कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, एंड मैनी रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर इन्वॉल्व इन दिस। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो लोग जो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उनको इसके बदले में क्या मिलता है, मनी मिलता है, और इस तरीके से वो अपना ट्रांसपोर्टेशन के में इन्वॉल्व होने के बाद उनको कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाती है, और वो थोड़ा सा उनकी सर्वाइवल ईजी हो जाती है। सो किशोर की स्टोरी इज़ गिवन, उसमें हमने देखा कि किशोर जो है वो कि एक फार्म लेबरर है, और उसको अपनी जो भी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वेजेस से जो मिलते हैं उससे काम नहीं चल पाता, तो उससे क्या करता है कि बैंक से लोन ले लेता है, और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू उसको कुछ हम कह सकते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको लोन प्रोवाइड हो जाता है, और उसके बाद वो उनसे अपना मतलब बुफेलो वगैरह ख़रीदने के बाद एक गाड़ी भी ले लेता है, और उसको वो जो भी गंगा के आसपास के एरियाज़ हैं उस वहाँ पे जा कर के सामान को बेचता है, और पहले से जो भी उसको कमा कर मिल रहा होता है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप इट इज़ you will be able to understand this chapter well. Here I am just showing you a mind map in which I am just providing you a quick revision of the whole chapter. Here the story of village Palampur. Now we can move. What are the factors of production? Land, labor, physical capital, human capital. Physical capital is further classified into two parts, that is fixed and working capital. We have discussed about it. The fixed capital, examples of fixed capital is tool, machine, and examples of working capital is money in hand and raw material. Now we'll move towards the land distribution. Yes, we all know that land is distributed into small farmers, medium farmers, large farmers, and laborers which are landless. And here we'll discuss about non-farming activities: shop, manufacturing, pot making, services, teaching, doctor. These kinds of activity are involved in the non-farming activity. And now here we can see farming activities into how we can improve production through multiple cropping and modern crop methods. When we are using modern method, we used HYV seed, fertilizer, pesticide, farm machineries, sorry for farm machineries. And when we are providing irrigation, dams, canal, pump sets, I indulge in
जो भी इंक्रीज़ किए जाते हैं। इरिगेशन फैसिलिटी को लगाने के लिए लोगों ने मतलब अपने ट्यूबवेल्स जैसे कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से लगवाए गए थे और पालमपुर में कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगवाए थे। नाउ हियर वी कैन सी द कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेव मनी एंड बोरो मनी। कुछ लोग अपनी सेविंग्स से जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है फार्मिंग करने के लिए, वो लार्ज एंड मीडियम फार्मर जो होते हैं वो अपना सेविंग से प्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं और लैंडलेस लेबरर्स हैं दे हैव टू बोरो द मनी. So this is a mind map of this chapter. Thank you very much students. I hope this you people be able to learn this properly. So thank you very much for the patience hearing, and I'm just ending this video with a good note. A well educated mind will always have more questions than answer, which is said by Helen Keller. So please ask questions. Thank you.